Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. I have given you a worksheet that is stars and solar system. Now I will discuss the answer. The first question is, what is constellation or define constellation? Constellation is a group of stars that appear to form a pattern or a picture. Means कोई एक recognizable shape ले रहा है, that is known as constellation, like Orion or the Great Hunter. Asteroids, the particle that revolve between the planet Mars and the Jupiter. You can say it as the rocky substance, the dust particles that present in the solar system. It is known as asteroids. Differentiate between the falling stars and planets. आपको differentiate करना है. Stars have their own light or emit their own light. Planets do not have their own light. They reflect the light of sun. Stars twinkle at night. Planets do not twinkle. Now, what are comets and meteors? Comet is a celestial body believed to be composed primarily of space dust. Dust होता है, frozen gases होती है. A comet makes an orbit around the sun. वो sun के around revolve करती है. But जब यही कॉमेट अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिवॉल्व करता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में अंदर आता है, तो इट इज़ नोन एज अ मिटियोर. स्मॉल पीसीज और पार्टिकल्स ऑफ कॉमेट सेट आर ऑन कोलिजन कोर्स विद द अर्थ, जो अर्थ के साथ कोलाइड करते हैं, आर कॉल्ड मिटीरॉइड्स. व्हेन मिटीरॉइड्स एंटर द सर्फेस इट इज कॉल्ड अ मिटियोर. नाउ, natural and artificial satellite. Natural and artificial satellite. Natural satellite, the satellites which are formed by nature, जो नेचर ने खुद बनाई है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट, द सैटेलाइट्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स ने बनाई है. नेचुरल सैटेलाइट एग्जाम्पल इज योर मून एंड आर्टिफिशियल इज योर इनसेट, एडुसेट, आर्यभट्ट वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फर्स्ट पर्सन दैट स्टेप्ड ऑन मून. वो फर्स्ट पर्सन कौन था जो मून पे गया था? दैट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग. एंड द फर्स्ट इंडियन पर्सन, दैट इज योर राकेश शर्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन वाई डू वी सी फेजेस ऑफ मून. हमें फेजेस ऑफ मून क्यों दिखते हैं? इट जस्ट अ सिंपल आंसर दैट सी वी हैव सन, मून एंड अर्थ, सो इट रिफ्लेक्ट्स अ लाइट. द पार्ट विच रिफ्लेक्ट्स अ लाइट इज ओनली विजिबल टू अस. दैट मीन्स जो जितना पार्ट आपका लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है उतना ही पार्ट हमें विजिबल हो रहा है. दैट्स वाई वी सी द फेजेस ऑफ मून. नाउ, जस्ट लाइक द अर्थ, हाफ ऑफ द मून इज लिट बाय द सन. कुछ पार्ट आपका मून का लिट हो रहा है, सन की हेल्प से लाइट ग्लो कर रहा है, वाइल द अदर हाफ इज इन डार्कनेस. दूसरा पार्ट डार्कनेस में रह गया. द फेजेस वी सी रिजल्ट फ्रॉम द एंगल द मून मेक्स विद द सन. जो एंगल मून और सन आपस में बनाएंगे उसी के थ्रू सन की लाइट मून के ऊपर पड़ेगी. मून के ऊपर आएगी तो मून वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा एंड उस रिफ्लेक्शन से हमें मून का कुछ पार्ट विजिबल होगा. We only see that part of the moon that reflects the sunlight back to us from its surface. Now next question is, now a star is 10 light years away. एक star 10 light years away है. So suppose it brightens up today. आज एकदम से दिखता है. After how much time shall we see the change? हमें वो change कब मिलेगा? After 10 years. Light years misprinting है. After 10 years we will see. Now why? Because 1 light year equals to one day of the earth. So that means, so 10 light year equals to 10 years of the earth. So therefore we get 10 years. Why meteors are not visible during the day? Meteors हमें visible क्यों नहीं होते day पे? Because due to powerful rays of the sun. आपके पास sun की powerful rays हैं तो उसकी वजह से हमें meteors visible नहीं होते. We cannot see meteors during daytime because due to powerful rays of the sun the sky is very bright, so meteors blend in with the light of the sun. Why do we always see the same side of the moon? हमें मून के हमेशा सेम साइड क्यों दिखती है? Because the rotational period and the revolutionary period of the moon is same. Therefore we always see the one side of the moon. The moon always shows the same side to us is that the time taken to complete a rotation around its axis. Why? Is the same as the time needed to complete an orbit around the earth. Now, next question is, if the distance between the sun and the earth becomes half. जो distance है sun का और earth का वो अगर half हो जाए present value के, what is likely to happen with the life के साथ क्या होगा? ऑब्वियसली डिस्टेंस कम होगा तो अर्थ और सन का डिस्टेंस कम हो गया तो अर्थ के ऊपर सनराइज डायरेक्टली पहुंचेगी और स्पीड से पहुंचेगी, तो अल्टीमेटली
वो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करेगी, इन्वायरमेंट बर्न होगा और हमारी लाइफ फॉर्म डिप्लॉयड होना शुरू हो जाएगी, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ मोस्ट पीपल ब्लेम स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन देयर हॉरोस्कोप। जो हमारे पास स्टार्स एंड प्लैनेट्स हैं, कुछ लोग हमेशा उनको ब्लेम करते हैं कि सैटर्न की पोजीशनिंग ऐसे है तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, यूरानस की पोजीशनिंग ऐसे है तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। एक्चुअल में कभी भी ऐसा नहीं होता, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। नाउ Rohan is one of them. He believes that positioning of Saturn in wrong place in horoscope is the reason of his bad performance. रोहन बिलीव करता है कि जो सैटर्न की पोजीशन है वो गलत है, देयरफॉर उसकी बैड परफॉर्मेंस है, मतलब वो स्टडीज़ में अच्छा नहीं है। नाउ व्हाट आर द हेवनली बॉडीज? हेवनली बॉडीज क्या होती है? हेवनली बॉडीज आर द ऑब्जेक्ट इन स्पेस, ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस में अवेलेबल है उन्हीं को हेवनली बॉडीज बोलते हैं, सच एज सन, मून, प्लैनेट्स एंड स्टार्स. Do you think that these heavenly bodies play an important role in our failure and success? No, because अगर हम hard work करेंगे, when we do hard work, we will get better result. When we don't, so we don't get results. So therefore, we blame on other objects. Now, have you ever heard these kinds of things? आपने कभी सुना होगा कि आपके रिलेटिव्स में या आपके रिलेशंस में कोई ना कोई बोले दैट सैटर्न की पोजीशंस ऐसे है या यूरानस की पोजीशन ऐसे है, मरकरी ऐसे है आपका, सो देयरफॉर यू आर हैविंग अ मिसफॉर्चून विद यू. सो आपने किससे सुना ये सुपरस्टिशियस? ऑब्वियसली फ्रॉम अवर ग्रैंड पेरेंट्स. वॉट वैल्यू ऑफ रोहन इज शोन है? कौन सी वैल्यू रोहन शो कर रहा है? ही इज सुपरस्टिशियस एंड लेजी. वो काम तो करना नहीं चाहता, बस वो बिलीव करे कि सैटर्न की पोजिशन ठीक होगी तो मेरे साथ सब कुछ ठीक होगा. वॉट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ? लाइफ कैसे पॉसिबल है? आपके पास लाइफ सपोर्टिंग गैसेज हैं, वाटर प्रेजेंट है एंड एटमॉस्फेयर है जिसके ऊपर एक ओजोन लेयर का ब्लैंकेट है. नाउ नेम द फॉलोइंग अनदर नेम ऑफ कॉन्स्टिलेशन. ग्रेट बियर का सेकेंड नेम क्या है? सप्तऋषि. नाउ प्लैनेट्स दैट डू नॉट हैव सैटेलाइट ऑफ देयर ओन. कौन सा प्लैनेट है जिसके पास अपनी सैटेलाइट नहीं है? दैट इज मरकरी एंड वीनस. स्टार विच इज नियरेस्ट टू सन, दैट इज अल्फा सेंचुरी. What is the speed of light in meter per second? 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. रिंग सिस्टम क्या है जुपिटर का? दैट इज जोवियन रिंग सिस्टम. प्लैनेट दैट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज वीनस एंड यूरेनस. इन दोनों की डायरेक्शन रोटेशन की डिफरेंट थी बाकी सबसे. कॉमेट दैट इज सीन आफ्टर 76 ईयर्स after every 76 years, that is Halley's Comet. That's all for today. Thank you.